Today we are here to share and also place the viewpoint of Mismi Welfare Society on the development that has taken place, aftermath of the mysterious death of late Tumi Gangkak, who was serving as Undersecretary at APPSC and Assistant Controller of Examination. Many of you might be wondering as to why the Mismi Welfare Society has all of a sudden emerged to make a press briefing. But for your kind information, I am to inform you that Inspector Bumchu Krong and Inspector Techinega were attached with CBI as an investigating officer in the infamous APPSC fiasco. But we have observed that Inspector Bumchu Krong, who besides his association with the police department as an employee, is also a member of Mismi community. We have also seen that his name has been dragged again and again and put to media trial and community trial from one of the advanced community of our state, which is, we feel, very unfortunate. And today also, MWS, Mismi Welfare Society, expressed solidarity with the family of the deceased and also acknowledged that the death of Tumi Gangkak is a great loss for the state, as the incident has brought the investigation of the APPSC fiasco to sudden halt. So, as you all know, that Inspector Bumchu Krong happened to be the last person to call late Gangkak on 23rd February 2023. So, it was quite obvious that the element of suspicion towards the caller would always be there, considering the human nature and emotion. But at the same time, we should not also forget that Inspector Bumchu Krong have called Tumi Gangkak while performing his line of duty as an investigating officer. Now, we are also made to understand that the Galo Welfare Society, GW, has taken over the issue of that Tumi Gangkak matter. And it is also being observed that GWS is putting all possible pressure upon the government in getting their unjustified and illogical demands fulfilled. Dear friends, here I would like to refer to the informal tripartite meeting of Arunachal Indigenous Tribes Forum, Galo Welfare Society and Mismi Welfare Society, called by Arunachal Indigenous Tribes Forum, that is AITF, on 27th of February 2023, wherein 3 members from Mismi Welfare Society and General Secretary GWS have attended. In that meeting, both the CBOs, that is Galo Welfare Society and Mismi Welfare Society, have agreed that they will maintain restraint
and shall place demand for conducting free and fair and speedy investigation of the late Tumi Gangkak death case. And in that meeting, for your kind information, the General Secretary GWS had assured AITF and MISMI Welfare Society that no personal attack on Inspector Bumchu Prong would be made from GWS and other frontal organization from Galo community. Fine, it was good that the name of Bumchu Prong was not taken on 28 February 2023 when candlelit procession was conducted at Itanagar. But we have seen Bumchu Prong's name has been used in most heinous manner by GWS and its frontal organization in subsequent days, which we feel is very unfortunate. We condemn it, and it was, in fact, the breach of trust from the part of Galo Welfare Society, we consider. We have been saying and saying today also that MISMI Welfare Society is not shielding Inspector Bumchu Prong. Yes, he is the member from MISMI community, but we always say that if he is found to be involved in the death of Tumi Gangkak, he should be punished as per law. But it is not fair that an innocent gets such kind of harassment that too from a mature community like GWS. Here, I would also like to share some notable works done by Inspector Bumchu Prong in recent past. It was Inspector Bumchu Prong who, as an inquiry officer, has cracked APSSB case for job scam. And what has happened with the people, those who were involved in case for job scam, is all for you to see. Some has been convicted also, and inquiry is still going on. And another, it was due to the effort put in by the Inspector Bumchu Prong again that the Chandani Hotel modus operandi of APPSC fiasco was unearthed. In fact, as a concerned citizen, we all should be proud of a person like Inspector Bumchu Prong for doing this remarkable work as a police officer. And now that the police department have released preliminary inquiry report of late Tumi Gangkak death case on 12th of this month through media briefings, the MISMI Welfare welcomes and appreciates the police department for bringing out preliminary inquiry report, though bit late, and also appeal police department to complete the inquiry as soon as possible without fear and favor. And I again say that MISMI Welfare Society have faith in the system, and we believe in the system, and we hope that
free and fair and speedy investigation would be taken up by the police department. And with this, I pause here and I request my co-member Suraj Tayang, the General Secretary, Kalsam, to carry forward. Please. Thank you, sir. जैसा कि यहाँ पे सभी मीडिया बंधुओं को पता है कि वो जो दुखद घटना हुआ था लेट तुमी गंगा साहब का जो अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद में जो ह्यू एंड क्राई हुआ है, उसके बाद ही उनके फैमिली मेम्बर्स ने और गालो समाज के कुछ मेंबर्स ने बुमचुक रोंग को मतलब बतौर मर्डर उन्होंने एक्यूज़ किया है। लेकिन उस समय जो बिरीव्ड फैमिली मेम्बर्स है उनका सेंटिमेंट्स को समझते हुए, ऑनर करते हुए मिशमी समाज ने और जो बुमचुक रोंग का फैमिली मेम्बर्स ने दे मेंटेन एटमोस्ट रेस्ट्रेंट, उन्होंने धैर्य के साथ काम लिया। न मिशमी समाज ने न बुमचुक रोंग के परिवार वालों ने किसी प्रकार का प्रतिक्रिया व्यक्त किया, न किसी तरह का सोशल मीडिया में या किसी भी फोरम में उन्होंने किसी भी तरह का ये रिएक्ट नहीं किया है। उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ बाकायदा। उसके बाद में एसआईटी गठन होने के बाद में रिसेंटली आप लोगों को पता है कि स्टेट पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जिसमें जो भी अभी तक का जो फाइंडिंग्स है एसआईटी का, ये खुलासा किया कि जो लेट गंगा जी का जो मौत था इट वाज से सुसाइडल नेचर, जो पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बताता है। दूसरा बात, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, इंस्पेक्टर्स, जिन पर आरोप था कि ये लोग मर्डर में शामिल है, तो जो जांच के एसआईटी का जो जांच था उसमें उनके खिलाफ ऐसा कुछ भी एडवर्स नहीं पाया है, कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे कि बोल सके कि ये लोग उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अब क्या होता है कि चिंता का विषय यहाँ पे होता है, अब जब एसआईटी का जो फाइंडिंग्स उजागर होता है, खुलासा होता है, इसके बाद भी अभी जो गालो वेलफेयर सोसाइटी है, उनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका आरोप का बौछार पे बौछार कम नहीं हो रहा है। वो लोग अभी तक भी वो लोग मानता नहीं है, वो लोग मानने को राजी नहीं है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट को नहीं मान रहा है। वो लोग एसआईटी का रिपोर्ट का अभी तक का फाइंडिंग्स को नहीं मानता है। तो इससे हम लोग काफ़ी चिंतित है। हम लोग मिशमी वेलफेयर सोसाइटी बीइंग ए मेच्योर सीबीओ, जब उनका गंगा जी का डेथ के बाद में जो ह्यू एंड क्राई हुआ, जो बुमचुक रोंग को इतना सारा उनको बदनाम किया गया, डिफेम किया गया, उनको मर्डर लेबल किया गया, लेकिन मिशमी समाज ने पूरा रेस्ट्रेंट रखा, रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जब एसआईटी का जांच और पीएम रिपोर्ट को भी अभी नकारता है कुछ लोग, दे डोंट वांट टू क्या बोलता है इसको, एग्री नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे मीडिया बंधु लोग हैं, हमारे देश में सर्टेन एक प्रोसेस होता है, एक लीगल प्रक्रिया होती है, लीगल सर्टेन एक एस्टैब्लिश नॉर्म्स होता है, एसओपीस होती है सर्टेन काम्स का, उसके जरिए चलता है, हम लोगों को मानना पड़ता है। तो हमारे समझ में ये नहीं आ रहा बात की जो बाकायदा एसआईटी गठन हुआ है, एसआईटी का जो लीडर, एसआईटी को टीम लीड कर रही थी, वो आपको पता है ये आपका डीवाईएसपी है केंगो दिर्ची साहब, वो भी गालो समाज के हैं। और जो इसको सुपरवाइज कर रहा था एसपी साहब जिमी चेराम साहब, आईपीएस, वो भी गालो ऑफिसर है। और जो पीएम भी हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उनका जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स में से 3 में से एक गालो डॉक्टर थे, सुनने में आया है। इसके अलावा जो डिजीज थे, उनका जो भतीजा है वो भी थे, विटनेस कर रहे थे वहाँ पे। तो अभी हमारा समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो एक प्रॉपर तरीके से जो हुआ है, जो डिजीज का फैमिली मेम्बर्स का ही ये था, डिमांड था कि एसआईटी का गठन हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमारा भी आदमी हो, सभी उनके कहने के मुताबिक होता गया है। पर अभी जब ये पीएमई रिपोर्ट जब एक्सपोज होता है और एसआईटी का जो फाइंडिंग्स को जब वहाँ पे पुलिस का स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है, तो उनको फिर मानने को ये लोग तैयार नहीं है। तो हमारा समझ में नहीं आता है कि ये लोग आखिर चाहता क्या है। तो हम लोग काफ़ी चिंता में पड़ गया इसमें, इसलिए हम लोग को मजबूरन मिशमी वेलफेयर सोसाइटी को यहाँ पे आना पड़ गया है, क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं कि ये कहीं बुमचुक रोंग को विक्टिमाइज कर रहा है क्या। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बुमचुक रोंग जो है, जो पहला केस जो है आपका एपीपीएससी एई पेपर लीकेज का, जो पहला जो केस का भी वो आईओ थे। उसके बाद जो सेकेंड केस एपीपीएससी 2014 से लेकर 2022 तक का, उसका भी टीम में शामिल है वो।
फिर मैं आपको ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जो जब ये जांच चालू हुआ है, जब वो आयो थे वो 27 सितंबर 2022 से, तब से उनका पिताजी अक्टूबर का पहला हफ्ता से अस्पताल में एडमिट हो गया। लेकिन बुमजू क्रोंग इतना वो एक सिंसियर ऑफिसर, हार्ड वर्किंग ऑफिसर है, उन्होंने पिताजी को बीमारी को ख्याल नहीं, मतलब अपना ड्यूटी को प्राथमिकता देते हुए अपना अपना ये जांच में लगाया है। लेकिन फिर अच्छा हो गया, फिर दोबारा अक्टूबर में फिर से ये एडमिट हुआ है, तब जाकर के उनका पिताजी का ये आरके मिशन में बाद में 11 फरवरी 2023 से लेकर के 21 फरवरी 2023 तक 10 दिन तक एडमिट था आरके मिशन में। फिर उसके बाद 22 फरवरी 2023 को मुमजू क्रोंग ने फिर से ड्यूटी ज्वाइन किया विद इंस्पेक्टर तेची नेगा, सीबीआई में अटैच हो गया ईटानगर में। अब अभी देखिए, अभी पिछला 6-7 महीना से इनका पिताजी बीमार है। उसके बाद में ये जो है बुमजू क्रोंग जो है बीमार पिताजी का इलाज, उसको नर्स भी कर रहा है अपने पिताजी को, साथ में ड्यूटी वो बैलेंस बना रहा है कि ड्यूटी भी करना है मुझे, ड्यूटी भी बहुत ज़रूरी है, एक निष्ठा के साथ विद सर्टेन लेवल ऑफ पैशन वो ड्यूटी कर रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में फिर आपका ये 13 अप्रैल को पिताजी उनका चल भी बसा है। तो ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि टू गेन सिंपैथी, माने सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ये बात नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि देखिए जो ऑफिसर इतने सिंसियरली काम करता है, पिताजी बीमार था उनको भी देखता है, तो ऑलरेडी वो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ था उनका, तो अभी तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, उन्होंने कितना मतलब अच्छा काम किया है। मतलब ये एक आयोग एसआईसी में 2019 से वो वहाँ पे तैनात थे। तो आप सोचिए उन पे जो मर्डर का इल्ज़ाम लगा है, तो आप देखिए जो आदमी इतना होनहार सिंसियर ऑफिसर और जो पिताजी का बीमारी में इतना उसमें वो ग्रस्त था, उनका मन में मर्डर प्लॉट करने का ख्याल आएगा क्या? और एक और बात है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनका जो प्राइम विटनेस को उसका हत्या करेगा क्या? इसमें तो कोई लॉजिक होता नहीं है। फिर ये बात भी मुझे कहना यहाँ पे ज़रूरी लगता है कि जब उनका जो जांच चल रहा था तो उन्होंने बहुत सारा हाई प्रोफाइल केस को उन्होंने हैंडल किया है, जैसे कि ट्रांस अरुणाचल हाईवे, एपीएसएसबी, और अभी जो फिलहाल जो इनफेमस एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कैम जो है। तो इस दौरान उन्होंने बहुत सारा लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से बड़ा बड़ा ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो अभी वी कांट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि उनके जिनको उन्होंने पकड़ा है, उनका जब वो जांच अधिकारी थे तो उनके खिलाफ पर्सनल ग्रज भी they might be harboring personal grudge against the officer, and we are apprehensive कि there is possibility कि ऐसा लोगों मौका में होगा कि उनको हार्म करना है, मौका मिलेगा तो एक पर्सनल ग्रज तो उनके खिलाफ है ही। तो अभी क्या है कि हम वी आर वेरी मच वरीड अबाउट द वेल बीइंग एंड सिक्योरिटी ऑफ बुमजू क्रोंग। तो अभी क्या हमारा एक ये है, आप लोग को पता सुना होगा कि एक जोसेफ गोबेल्स करके है, एक नाजी पॉलिटिशियन थे, वो क्लोज थे एडॉल्फ हिटलर के। उन्होंने कहा था इफ यू टेल ए लाई बिग एनफ एंड कीप रिपीटिंग इट, पीपल विल इवेंचुअली कम टू बिलीव इट। तो अभी हम लोग को डर ऐसा लगने लग रहा है, देखिए एसआईटी का जांच अभी ऑलमोस्ट 70-80% से अधिक ये हो गया है, पीएमई रिपोर्ट भी आ गया है, अभी ये लोग मानने को तैयार नहीं है उसको, अभी भी ये लोग फिर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है। तो अभी हम सोचते हैं इसके पीछे क्या है, माने इनका क्या एजेंडा है, कि इनका क्या अल्टीरियर मोटिव है। तो हम ये मानते हैं कि हम जो गालो वेलफेयर सोसाइटी जो अभी बुमजू क्रोंग को जो आरोपी ठहरा है अभी तक भी, इसका हम जोरदार तरीके से इसको हम विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। और हम ये उम्मीद, जैसे कि हम सभी को पता है कि गालो समाज हमारा अरुणाचल का वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एडवांस इंटेलेक्चुअल समाज का गिनती में आता है। तो हमने कभी ये उम्मीद नहीं किया था कि इतना एडवांस समाज के लोग इस तरह का हरकत करेंगे, इस तरह का अप्रोच रखेंगे। तो हम गालो समाज से गुजारिश करते हैं कि henceforth they are requested not to drag the name of बुमजू क्रोंग in this case. Let's wait for the investigation, अभी पूरा नहीं हुआ है तो वो होने दीजिए, उसके बाद उसका फाइनल आउटकम जो होगा तो उसमें अगर वो दोषी होता है तो एज पर लॉ ही विल बी पनिश्ड। लेकिन जब तक अभी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ है, इट इज़ अनफेयर टू ब्रांड हिम एज ए मर्डर और हिज ब्लाइंडली अक्यूज हिम ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन द मर्डर ऑफ लेट तुम्ही गंगकर साहब। तो इसके साथ मैं हमारा सर आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ।
नमस्कार सभी को। ज़्यादातर पॉइंट्स जो है हमारे सीनियर्स जो कलीग ने कवर कर दिया है, बट इवन देन हम लोग को आज का दिन में इसलिए आना पड़ रहा है कि कंटिन्यूसली हम लोग कुछ महीना से देख रहा है ये जो मीडिया ट्रायल्स हो रहा है, एंड देन टिल नाउ व्हेन यू सी जो भी एक्टिविटीज़ हुआ, जो भी प्रोसेस हुआ, इट वाज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द GWS एंड द फैमिली कंसर्न, जिसका मतलब घर में डेथ हुआ, उन लोग का फैमिली का कंसर्न रहते हुए एवरी प्रोसेस वाज टेकन अप। तो आज का दिन में पीपल डोंट वांट टू बिलीव द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन उन लोग सिर्फ मीडिया में पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का मन नकार रहा है, लेकिन वी डोंट सी एनी एक्शन कि उस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में अपना रिश्तेदार भी था। टेक्निकली देखने से तो अपना रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, वेरास व्हेन बुमचो कोरोंग का रिश्तेदार नहीं है तो लेट तुमिगांका साहब का रिश्तेदार भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन कंसिडरिंग द सेंसिटिविटी ऑफ दैट वन, ही नेफ्यू वाज आल्सो अलाउड टू बी अ। तो आज का दिन में अगर उन लोग फैमिली मेम्बर्स या जो भी है उन लोग मेडिकल रिपोर्ट को नहीं मान रहा है, तो दे शुड गिव इन राइटिंग वाई दिस मेडिकल रिपोर्ट इज नॉट बीन कंसिडर्ड। दूसरा बात है, एज पर द पुलिस ब्रीफिंग 70 डेज का बाद जब एक पर्सन 65 सेकेंड्स के लिए 65 सेकेंड्स का कन्वर्जेशन होता है, उस 65 सेकेंड्स का कन्वर्जेशंस को लेके आपने पूरा स्टोरी या पूरा जो भी आपका नैरेटिव है उसको बिल्डअप कर लिया एंड यू accuse the guy as a murderer, this is not done as an, क्योंकि सब कुछ जस्टिस चाहिए बोल रहा, तो जस्टिस चाहिए मीन्स जस्टिस फॉर बोथ, जो गुजर गया उसको भी जस्टिस चाहिए और जो जिसने इतना अपना खून पसीना बहा के अपना ड्यूटी निभाया उसको भी जस्टिस चाहिए। लेकिन दैट डजंट मीन कि आप जस्ट 65 सेकेंड्स का कन्वर्सेशंस को आप उसको मर्डर में लिंक कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि स्टेट यहाँ से पकड़ लो, लाइन से आपका CCTV फुटेजेस है, तो समवेयर आप टेक्निकल एविडेंस को कुछ जगह में मानेगा नहीं मानेगा, बेस आप आपका मर्जी से टेक्निकल इंफॉर्मेशंस को मानेगा नहीं मानेगा बोलने से नहीं होता है। तो दूसरा बात है कि अभी पकड़ लो, your family member has overheard what the late तुमिगांका got said, उसी तरह बुमचुक कोरोंग का साथ में भी उसका कॉलीग साथ में बैठा था, लोग भी कन्वर्सेशन हुआ है। तो देयर आर मेनी इंस्टेंसेस वेयर पीपल आर मतलब एज ए डिपार्टमेंट या एज ए कम्युनिटी या फ्रॉम बुमचू साइड का तरफ से कुछ मतलब हम क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा, मतलब नहीं है कि वो ही इज़ पार्ट ऑफ दैट। वी हैव बीन सिविल, वी हैव बीन जस्ट देख रहा है कि सिविल मेंटेन हो और मतलब थिंग्स शुड गेट डाउन। बट अभी ऐसा हो गया कि इमेजिन करो, अभी जब हम ऐसे ही मतलब ओवर डिफरेंट नंबर ऑफ मतलब जो अभी तक जो पेपर सेलिंग केसेस में और आपका मतलब कैश फॉर मनी ये सब में जब देखता है तो ऑलमोस्ट 46 नंबर ऑफ पीपल्स हैव बीन क्या बोलता है टेकन इनटू कस्टडी। आउट ऑफ उसमें पकड़ लो 17 जैसा जो है गालो समाज से है, उसमें से भी अराउंड से 10 या 7 तो जो है वो उस क्लाइंट से बिलोंग करता है जो लोग सबसे जोरदार कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट, हम लोग का ये भी अभी अप्रहेंशन हो रहा है कि इज इट बिकमिंग मोटिव उल्टा हो रहा है। एक्चुअली जिसको ब्लेम कर रहा मर्डरर, लेकिन जो ब्लेम करने वाले लोग का मोटिव्स अलग हो गए कि अपना जो ऑलरेडी केस में फंसा है उसको बचाने का ये मतलब ये है क्या। तो दैट इज़ व्हाट हम लोग को भी एक क्वेश्चन है कि ऐसा कैसा हो गया कि आप मोटिव ठहरा रहा है, यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग एनी मेंशेरिया ऑन द मर्डर केस। अब आप कुछ ना एक
65 सेकेंड्स का, आफ्टर 70 डेज का गैप में 65 सेकेंड्स का फ़ोन कॉल का बेसिस में आप एक मर्डर ठहरा रहा है. बट सिंस किसी का एक लाइफ जाने का बाद होने का कारण एवरीबडी हैज़ बिकम इमोशनल एंड एवरीबडी हैज़ बीन सपोर्टिंग द डिसीज का वर्जन. बट यहाँ में एक सिंसियर ऑफिसर जो जॉब कर रहा है, अपना ड्यूटी निभा रहा है, उसका क्या? एंड देन व्हेन यू सी इफ सिंस GW हैज़ टेकन इट कम्युनल, बिकॉज ये तो होना चाहिए था पुलिस एंड बोमचुकोरों का बीच में केस होना चाहिए था, लेकिन ये GWS एंड बोमचुकोरों केस कर दिया. तो बोमचुकोरों केस कर दिया तो हम लोग को भी आना पड़ रहा है. वेर एज वी वर एक्सपेक्टिंग कि पुलिस एंड बोमचुकोरों होना चाहिए था एक्चुअल बोलने से, अगर एक्यूज करता है तो. लेकिन ऐसा नहीं हो कि ये कहानी कुछ और चला गया. एंड देन अभी हम लोग जब टीवी रिपोर्ट आपका ऑनलाइन पोर्टल्स का जब वेरियस न्यूज़ देखता है तो पीपल आर स्टार्टेड ट्रैकिंग बोमचुकोरों. दैट इज़ नॉट गुड एक्चुअली. हम लोग का जो ट्राइबल समाज में ऐसा करना मतलब यू आर, आप मर्डर करने का आप भी प्लान कर रहा है. कल को ऐसा ना हो जाए कि मतलब कुछ हादसा हो जाए एंड देन थिंग्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी. तो ये तो एक व्हेन यू वांट टू बिलीव यू शुड स्टार्ट बिलीविंग इन साइंटिफिक अप्रोच, जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस आर परसुइंग. लेकिन नहीं, आप लोग उन लोग का साइड ऑफ वर्जन्स को आप नहीं मानना चाहते एंड यू वांट टू बिलीव ओनली दैट वो 65 सेकेंड्स का कॉल का बेसिस में यू मेड द जजमेंट. एंड सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल द सेन पीपल ऑफ द स्टेट. देखिए, एक डेथ हो गया, नोबडी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द अदर कॉजेस ऑफ डेथ. दे आर ओनली ब्लेमिंग द आज को, लेकिन उसका मोटिव कोई नहीं बता रहा है. बिना मोटिव का कोई मर्डर करता है क्या? से तो नहीं होता है. तो समवन हैज़ टू टेल इफ द डिसीज पीपल लोग का ये कि तो देन दे शुड गिव मोटिव व्हाई ही इज मर्डर. तो दिस मोटिव हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड. लेकिन नहीं, ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है. तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा देखना है. एंड देन आई अपील young people to look logically and understand that whatever you are trying to identify and trying to form an opinion is not always correct. One has to look into various facts and then make a judgment. Thank you. If you have a say, let the investigation be completed and let FSL report come, then only if Inspector Bomchukaro is found guilty of the police as of law. So, are you confident that FSL report there is nothing in FSL report as suggested by the Board of Doctors and suggested by police criminal report saying there is no exhaust, evidence, incriminating evidence against suspect officer. ये देखिए, ऐसा है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ माई आवर कॉन्फिडेंस. I again say that if Bomchukrong is found guilty, MWS, who is the MWS to seal? हम लोग चाह के भी हम लोग, अगर वो गिल्टी पाता है, डेफिनेटली ही विल गेट, सज़ा मिलेगा. अगर वो गिल्टी पाता है, वो जो इंक्वायरी का जो रिपोर्ट का जो आप जिक्र कर रहा है, दैट इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इसमें हम लोग को कुछ मालूम भी नहीं है, जाना भी नहीं है. लेकिन आफ्टर कोरोबोरेटिंग ऑल द एविडेंस, अगर फाइनली अगर बोमचुक्रोंग इज फाउंड गिल्टी, ही शुड बी पनिश. हम लोग का यही कहना है कि वी आर नॉट गोइंग टू सील एंड वी आर नॉट सील्डिंग एनीवन. बोमचुक्रोंग में भी कोई भी हो, वो क्रिमिनल इज क्रिमिनल. अगला आदमी होने से भी उनको भी सज़ा मिलना है, बोमचुक्रोंग होने से भी सज़ा मिलना है. और पॉइंट इज दैट, बट एज फार एज प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इज कंसर्न, तो
तो हम लोग को तो अभी तक का तो ये हिंट्स मिल रहे कि 2 police officers upon which allegation has been made, तो पुलिस का ये कहना है कि देयर इज नो एडवर्स, ऐसा कुछ कुछ नहीं पाया कि दो पुलिस ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व, क्योंकि उन लोग का लोकेशन ट्रैक किया गया। बुमचू क्रोंग का मोबाइल सीज अभी तक पुलिस के पास में ही है, उन लोग का सीडीआर। एंड वन मोर पॉइंट, जब बुमचू क्रोंग ने, क्योंकि उनसे भी हम लोग ने बहुत पूछताछ बहुत किया है, एंड कई लोग दूसरा लोग से भी हम लोग पूछा है कि टेलीफोन का जो वो भाषा क्या था ना, टेलीफोनिक भाषा क्या था उस दिन 23 को। बुमचू क्रोंग का ये कहना है कि क्योंकि 22 को उसने ज्वाइन किया, वो 23 को वो ड्यूटी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फादर बहुत सीरियस था, छुट्टी में था। तो फ़ोन में ये बात हुआ उस दिन, रैंडमली कॉल हो रहा था। फॉर योर इंफॉर्मेशन, सीबीआई ऑफिस में जो जो 2 पुलिस ऑफिसर जो सीबीआई में अटैच है, दोनों इस मैटर में रैंडमली कॉल कर रहा था। इसमें ये हुआ, जैसे हम लोग को पता चला कि दे वेयर वेरीफाइंग द सिग्नेचर्स ऑफ द वो एग्जामिनर्स का कुछ का वो स्कोर शीट में, तो उसके चलते दोनों ने कॉल किया। पता चला कि टिचिनेगा साहब ने आनिनी का जो प्रेजेंट डीसी है पगली सोरा साहब को कॉल किया, हम लोग को ये पता चला। और उसके बाद में बुमचू क्रोंग ने गंका साहब को कॉल किया, और उन लोग का ये कहना है कि सिंस ताकेत जरंग वाज इन जेल, ही इज़ नॉट एक्सेसिबल, तो जो नियर बाय है फ्रॉम होम वी कैन गैदर मीन्स क्रॉस चेक द सिग्नेचर्स, तो उन लोग का ये कहना है कि गंका वाज इन ईटानगर इटसेल्फ, तो उससे वो बुमचू क्रोंग का बात हुआ। पगली सोरा साहब से तेजी नेगा ने बात किया, तो आप लोग भी वो पूछ सकते हैं आई एम सेइंग द रॉन्ग और नॉट। तो टेलीफोन का कन्वर्सेशन में ये हुआ कि बुमचू क्रोंग ने ये बोला कि गंगा साहब आप 30 मिनट्स के लिए आ सकता तो आ जाइए, कुछ सिग्नेचर वेरीफाई करना है। बुमचू क्रोंग ने गंगा को ये फ़ोन किया, तो जवाब ये मिला वहाँ से, गंगक जी ने बोला कि अब्बा अचानक से बुलाता है क्या कोई, मेरा इमरजेंसी काम है घर में। तो ऐसा बोला। ओके, बुमचू ने फिर बोला कि ओके, अगर आपका काम बहुत अर्जेंट है तो कल आने से भी होगा, अगर छोड़ के आ सकता तो आ जाओ। तो उसके बाद गंगक जी बोलते हैं ठीक है सर, थोड़ा देर में आ रहा है, ऐसा बोल के। तो ये टेलीफोन गंगक जो है अपना वाइफ का आमने सामने से बात कर रहा था होगा, एंड बुमचू वाज कॉलिंग व्हाइल सिटिंग अलोंग विथ हिज को ऑफिसर। तो हम लोग को ये लगा कि गंगक व्हेन ही वाज इन कन्वर्सेशन विद बुमचू, उसका वाइफ ने ओवर हियर किया कि आधा घंटा के अंदर में आओ बोला है बोल के, उन लोग का उनका ये वर्सन। लेकिन बुमचू का ये कहना कि एक दो सिग्नेचर को वेरीफाई करना है, आधा घंटा का काम है, आप आ सकते तो आ जाओ, वो नहीं आ सकते तो कल आने से भी होगा, बुमचू का ये कहना है। तो ये स्टेटमेंट शायद पुलिस के पास में भी होगा, एसआईटी के पास में भी होगा। तो वही है, वो वी आर नॉट, कॉन्फिडेंस वाला बात बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्फिडेंस एंड इसमें वो कमजोरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी आर नॉट सेलिंग बुमचू एंड any other person. So guilty pata, he should be punished also. Thank you. You are worried that EWS and the control organization, they are not ready to accept the SIT preliminary report and post-mortem. So, what would be the future course of the future course of action? Since you both committee have come in often, now Misni Welfare Society is supporting Bonju Krong, so is Dalo Welfare Society and AKWS.
Well, our our one concern is what you asked me. I can't reply, but one thing I will say कि we are concerned about Bunchukrong because so far, as per the legal process, nothing incriminating has been found against Bunchukrong. So when nothing adverse is found against him, why should he subject to media trial? Why should he be defamed day in day out? Why should he be harassed? So that's why we are worried about him, and we are compelled to come in support of Bumchukrong because he is one of our worthy members of Miss Society. So initially we didn't come, na. You might be observing, we never spoke a word, we never uttered a word. But now after the SIT report has been made public, PME report has been made public, still they are not. Now it is now, the ball is in their court. Now make good sense prevails upon them. AIT has attempted to resolve this issue. Yes. So that this issue should not be communally overturned. Yes. What exactly had, what was the conversation between GWS and MWS during the AITF program? AITF has felicitated both organizations to resolve and sort out this issue. Yes, Since I was not privy to the meeting, our president will. I was Briefly. here on 27th of February. I was meeting. I was present in that meeting. AITF also we also desire that we all should restrain from बात को ज़्यादा वो नहीं करके ना, तो रेस्ट्रेन दिस वन ना, तो हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि वी विल प्लेस अ डिमांड फॉर फ्री एंड फेयर एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लेट टोनी दंका केस एंड बुमचुक्रोंग अगर उसमें ठीक है एलिगेशंस it was obvious because he was the last person to fall. We accept it and we didn't react. इतना ओवरटोन हम लोग ने कुछ because emotion was rising very high ना, तो उन लोगों ने भी ये accept किया कि we will not take the name of Bumchukrong further. ठीक है, free and fair investigation में वो लोग भी जोड़ देंगे. एंड 28 फरवरी को जो कैंडल लीट हुआ वो तो आप सबको पता है. उस दिन बुमचुक्रोंग का नाम नहीं लिया गया, इट वॉज मेंटेन. बट बाद में आफ्टर में जितना भी कुछ मूवमेंट हुआ, जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ, बुमचुक्रोंग का नाम तो पूरा जोरदार से उछाला. एंड वी कंसिडर दैट गालो वेलफेयर सोसाइटी हैज ब्रिज्ड द ट्रस्ट. तो उसका अपना एक एश्योरेंस को उसने वो ब्रीच किया है एंड दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. हम लोग का ये माने एग्रीमेंट हुआ कि AITF का भी यही कहना है कि वी ऑल विल प्लेस द डिमांड फॉर फ्री एंड फेयर एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डेथ केस ऑफ टोनी दंका. तो समस्या इसी में है. Okay, in this regard I have one video clip आप लोग देखने तो वहाँ से दिखाई तो नहीं दे, लेकिन I hope you can hear the साइलेंट क्यों एक नया डेवलपमेंट के केस में लेके नहीं आ. This is from West Young Students Union. Hello news में. Luken Gamblin का ये कमेंट है. This one is working. This one. और जिसको एक्यूज्ड है वो अभी तक क्यों फ्रीली आराम से घूम रहा है इधर उधर. हम लोग कभी कभी इधर उधर से पूछताछ करके फोन करके पूछने से बताता है कि वो इधर आराम से बेच रहा है. क्या आप लोग को
हम आज थ्रू ये हमारा आलो न्यूज चैनल का तरफ से हम एक सवाल पूछते हैं कि क्या आप लोग ये जिसको एक्यूज थे वो आप लोग का कानून का आदमी है बोल के आप लोग क्या अपना साथी है बोल के आप लोग ये नहीं कर रहे, अरेस्ट नहीं कर रहे क्या? ना ये हम लोग का Okay, this is the clippings. You can summarize. एक्चुअली आपका ये आया था, इट अपियर्ड इन द आलो न्यूज़ ऑन द डेट 11th of April. तो जहाँ पे ये बोला गया ही मैंने इट इज़ एविडेंट दैट उसका जो स्टेटमेंट से मालूम चलता है कि मैंने जो उन्होंने बयान दिया इसमें तो प्रेस ब्रीफिंग दिया तो लगता है कि मैंने दे आर ट्रेसिंग द वेयर अबाउट्स एंड कीपिंग टैप ऑन हिज मूवमेंट्स, मैंने कहाँ जाता है क्या करता है वो यहाँ पूछ रहे वाई ही इज अच्छा वाई द अक्यूज इज रोमिंग फ्रीली. तो एक तो ये हो गया. दूसरा क्या हो गया, इन्होंने बहुत सारा हाई प्रोफाइल केस हैंडल किया, आप लोगों को पता है तो हमसे अधिक आप लोगों को पता होगा, आप लोग ये किया है रिपोर्टिंग किया है तो जिसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंशियल लोगों को अरेस्ट किया इन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन थोड़ा हार्श भी होना पड़ता है ऑब्वियसली. तो अभी देखिए द वे द चेन ऑफ इवेंट्स इज टेकिंग प्लेस, हम लोग को काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि इसमें पीपल माइट टारगेट हिम और अभी दिखाई दे रहा है वो तो द वे. अभी तक का ये रिपोर्ट तो यही बताता है कि पुलिस का ये कहना है कि डियर वी हैव नॉट फाउंड एनी एडवर्स अबाउट दिस टू पुलिस ऑफिसर. तो इन्वॉल्वमेंट में नहीं पाया तो दैट्स व्हाई वी बिलीव दैट दे बुमचुप्रोंग विल बी क्लीन. तो हम लोग का ये एजम्पशन है लेकिन अभी फाइनल रिपोर्ट तो आया नहीं. देखिए प्रेस ब्रीफिंग पे प्रेस ब्रीफिंग आ रहा है, अब जहाँ तहाँ वो चर्चा होते रहता है कि दे आर नॉट गोइंग टू बिलीव दिस वन साइंटिफिक एविडेंस. सीडीआर वो पीएमई रिपोर्ट को नहीं मान रहा है और पुलिस ने जो प्रेस ब्रीफिंग जो किया वो एक पॉइंट भी उन्होंने नहीं माना है. तो ये क्या लॉजिकल है क्या? तो हमको तो लगता है कि ये तो इलॉजिकल है, ये जस्टिफाइड डिमांड नहीं है. नो, ऐसा बात नहीं हुआ, ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ. AITF का थ्रू से जो अंडरस्टैंडिंग था फर्स्ट AITF का थ्रू से इट इज़ अंडरस्टूड दैट द केस शुड बी फेयरली डन, नहीं है क्या? तो दैट मीन्स दैट वन पॉइंट में समझ जाना है कि एवरीबडी इज बीन रेस्टेड. लेकिन उसका बाद मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस रैली पे रैली करके वंस यू आर इन दैट केस यू आर जस्ट ट्राइंग टू पुश योर नैरेटिव्स. सो दैट इज़ वाई वी आर कंसर्न. मतलब वो फर्स्ट मीटिंग में जब डिस्कस हो गया दैट इटसेल्फ इज कॉन्टेक्ट पॉइंट. AITF का बैनर में GWS has come and MWS come and they have spoken and they have फ्रेम है मतलब अंडरस्टैंडिंग कि फेयरली होना है, फेयरली डिमांड करना है. उस समय में हम लोग ने कभी नहीं बोला कि बुमचुप्रोंग को बचाओ या मतलब इसको ये करो. बट वी टुडे ऑल्सो वी एक्सपेक्ट दैट थिंग्स शुड बी फेयर. कल को कुछ नया एविडेंस मिल के बुमचुप्रोंग सस्पेक्ट से ये क्या बोलते हैं कन्फर्म में होता है तो वी विल ऑलवेज बिलीव दैट. बट लेकिन मीडिया ट्रायल होना और ये आउटसाइड द परव्यू में होना दैट इज़ नॉट डन. एनीथिंग शुड बी डन इज दैट इट शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ जो भी लीगल प्रोसीजर है उसका थ्रू होना है. वी डोंट वांट कंगारू कोर्ट्स.
वी वांट That's दैट our concern. रियल जस्टिस। तो कल को ऐसा नहीं होना है कि जस्ट बिकॉज वी हैव, पकड़ लो मिश्मी समाज का आज का दिन में सब इंस्पेक्टर लेवल में सिर्फ 4 है, इमेजिन करो। लेकिन आप जब गिनती करेगा गालो समाज में 2 IGPs, 1 DIG और मोर देन 6 SPs, उसका बाद DSPs कितना है। So if you see the circumstances and all, you see that you have outnumbered the officers and all. कोई आदमी, हमारा आदमी ने एक गलती कर दिया तो ये सब भी पावर में है। लेकिन आज का दिन जस्ट बिकॉज एक मैंने इंडिविजुअल वो अपना सिंसियर काम कर रहा है और अपना जो जब वो नहीं होता है कास्ट क्रेड सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मतलब दैट डजंट मीन दैट आप रैली पे रैली करके मतलब you will change the course of the narration. That is not done. That's why we have come to this platform to give our clarification. सर ये भी जो ट्रस्ट जो हो रहा है गालो सोसाइटी में या ये के दौरान तो आप लोग की जो बात हुआ है उसको प्रोवाइड किया, तो आप लोग की तरफ से क्या बोला था गालो सोसाइटी? We will expect that, see, let the fair investigation happen. They should demand and they should ask for a speedy मतलब ट्रायल। लेकिन वो नहीं है कि आप बुमचुकरों को मूवमेंट्स को वॉच करके आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएगा आपका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से, और दैट थिंग्स इट इज़ अननेसेसरी। दैट इज़ वाई वी रिक्वेस्ट अगेन GWS and the concerned citizens that we all should request that the case should be एक्सपेडाइट तो हो रहा है लेकिन और भी करो। लेकिन सबसे ये समय का बात भी है क्योंकि FSR रिपोर्ट विल टेक 3 months, तो उसको भी आने दो। देन यू प्रूव टॉक्सिसिटी या जो भी है, तो उसका बाद टॉक्सिसिटी का बात करेगा तो फिर से कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग, तो उसका भी आप एविडेंस निकालना पड़ेगा ना। when the current evidences are saying that कुछ सामने में आसपास भी आया नहीं गया नहीं है, तो people have to, if there you are saying that क्या बोलता है कुछ है तो you should give it to the police. पुलिस को करना है। लेकिन आप लोग हर समय पुलिस भी एक्चुअली बोलने से अपने अपने इंटरवल में करना चाहिए था, लेकिन उन लोग ने भी थोड़ा डिले किया है उन लोग का तरफ से भी। बट अगेन टू मच प्रेशर हो के पुलिस ने भी हैंडल नहीं कर पाया होगा। लेकिन आई एक्सपेक्ट दैट पुलिस विल डू इट फेयरली, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर सिस्टम में सब जगह में मतलब करप्शन है और करप्ट बैठा है। सब तो अच्छा, सबका तो ये क्या बोलता है इमोशनली पीपल आर चार्ज अप बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग ये जो घोटाला का चल रहा है। तो वन हैज टू थिंक ऑन दैट लाइन। So we expect that as a mature society, everything should not be decided on a street and then a rally. It should let the law take the course. That is what we are requesting. अच्छा, मैडम जो पूछा है ना सर, एक हम तो ऐड करेगा ना। आपने जो पूछा कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गालो GWS, वी आर एक्सपेक्टिंग कि मतलब सिंस अभी जो हमने प्रिलिमिनरी जो जांच हुआ है ना, उसका फाइंडिंग्स के आधार पे we urge the Galo Welfare Society to kindly restrain their members to henceforth stop this mudslinging, stop defaming Bumchukrong, stop this smear campaign against Bumchukrong. Let the final report come. Let's wait. ये अभी एक और बात बोलेगा। अभी देखिए सर, आपने पूछा है ना कि अनजस्ट है क्या है। अभी देखिए हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं। वी आर ऑल यहाँ पे पढ़ा लिखा आदमी लोग, हम लोग जर्नलिज्म करता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए वी हैव टू रिलाई अपॉन द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स। हम लोग स्ट्रीट का नहीं कैंगारू कोर्ट नहीं चलेगा, खाप पंचायत नहीं चलेगा, इट इज़ वेरी डेंजरस। तो हम देखिए, और आप जवान यहाँ पे आप मीडिया पर्सन लोग है, सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू सम, मैंने इट शुड बी एज पर लॉजिक बने रैशनल। अभी देखिए हम लोग को वी हैव टू हैव फेथ ऑन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। अभी देखिए अभी रिपोर्ट आधा आया गया, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ गया, PM उसको नहीं मानता है, तो फिर किस पे रिलाई अपॉन करेगा? क्या रिपोर्ट चाहिए बताइए। और दूसरा बात, अभी एक बीच हमें बोला था यहाँ पे एक कोई नाजी प्रोपेगेंडिस्ट का ना मैंने जिक्र किया था। देखिए एक बड़ा झूठ को आप 100 बार बोलेगा ना, बार बोलेगा तो आदमी को मानने लग जाएगा। अभी देखिए अभी बुमचुकरों को आई एम नॉट सेइंग ही इज इनोसेंट, हम नहीं बोलेगा। लेट द कॉम्पिटेंट एजेंसी लेट हिम जज ना, लेट हिम जज माने बेस्ड ऑन देयर फाइंडिंग्स माने। आई एम नॉट शील्डिंग हिम,
बट बात ये है कि देखिए, जब तक वो जैसे कि बोलता है ना कोर्ट में भी, जब तक ए पर्सन इज इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी ना, तो वैसे अभी देखिए, अभी जो मीडिया ट्रायल करेगा, दिन ब दिन उसके खिलाफ ये धरनाबाजी करेगा, उनका डिफेम करेगा, तो उनके खिलाफ ये करेगा, तो प्रोवोक करेगा, तो कोई ना, हम सब का दिमाग सही नहीं होता है, तो इमोशनल आदमी इमोशन भी बहता है, तो कुछ भी कर देगा तो चीज़, तो वी डोंट वांट दैट टू हैपन मने। तो वैसा होगा तो गॉड फॉरबिड, ऐसा होने से तो बहुत कुछ हो सकता है हम लोग का पीसफुल स्टेट में। सो ये हेलेट, आई होप कि मैंने एडवांस टाइप है, बिग हार्ट शो करना चाहिए। So, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, इसलिए आप इसको ये बात को बोल रहे हैं क्योंकि ये डब्ल्यू ने कभी यहाँ आके तो फ्रॉम जैसे दूसरी कम्युनिटी सपोर्ट कभी नहीं किया, जैसे रोंगली ये डब्ल्यू किसकी वजह कम्युनल। देखिए कम्युनल, जब कम्युनल बोलना जरूरी नहीं होता ना, कम्युनल दिखता भी है, तो अभी आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है उसमें मतलब जब वो क्या बोलता है चीज़ को आप जस्ट बिकॉज वन स्मॉल कम्युनिटी का आदमी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वी आर अज्यूमिंग दैट कि इट हैज़ बीन टेकन दैट वे। अदरवाइज JWS शुड बी फाइटिंग विद पुलिस का साथ करना चाहिए था, पुलिस का साथ वो लोग लगना चाहिए था, नहीं पुलिस का साथ नहीं लग के वो तो कुरंग का साथ लग रहा है। तो बीच में तो और एक आदमी था, वो गायब हो गया, उसको भी कहाँ से लाया गया हम लोग को मालूम नहीं है। देन देयर इज उसका साथ में कॉलिग्स लोग है, उसका साथ में कॉलिग्स लोग कॉल दूसरा को कॉल किया होगा, लेकिन मे भी उसने वो लेट गंगक साहब को कॉल नहीं किया। लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर टारगेटिंग इंडिविजुअल, इट हैज़ बिकम कम्युनल। अदरवाइज यू शुड बी टारगेटिंग पुलिस, जल्दी करो बोलना चाहिए था, क्यों वो इंडिविजुअल को कर रहा, वो तो अपना लाइन ऑफ ड्यूटी कर रहा था। तो दैट इज़ वाई वी आर अज्यूमिंग दैट इट हैज़ बीन टेकन एज ए कम्युनल। तो हर बस्ती में जाके ये कर रहा है, तो दैट इज़ वाई वी आर रिक्वेस्टिंग दैट दे शुड रिक्वेस्ट द लॉ अथॉरिटीज टू expedite the case. Thank you. thank you so much.